Good morning, students. Today we are starting with projectile motion. It is a part of motion in two dimensions. Within a minute, we are about to start. The projectile motion is a simple topic. If you have done motion under gravity, it's an extension to the motion under gravity. तो सबसे पहले कुछ ब्रीफिंग लेंगे, उसका कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को हम लोग पढ़ेंगे और एक मिनट के अंदर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं. Within a minute, we will start. You can give the heading projectile motion. सबसे पहला पॉइंट आपको ये मालूम होना चाहिए, इट इज ए टू डायमेंशनल मोशन. Body has two velocities. Horizontal velocity vertical velocity. Horizontal velocity remains constant, keep changing. Due to acceleration due to gravity. Third, body has two displacement. Horizontal displacement and vertical displacement. Before we make a start, we should understand the projectile motion. The body has two displacement. Definitely horizontal displacement and vertical displacement. Horizontal displacement is due to horizontal velocity and vertical displacement is due to vertical velocity.
तो आप इसको नोट कर लीजिए, अर्लीस्ट नोट करिए। एट द एंड ऑफ द डे आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी और आपको सीखना पड़ेगा। आप कोशिश करिए, धीरे धीरे आप इसको सीख सकते हैं। यू शुड हैव a good book on physics so that you can perform the objective practice. अब चौथा पॉइंट हम इसमें प्रोजेक्टाइल मोशन में जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसका मतलब देयर इज नो एक्सेलरेशन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। So in horizontal direction the acceleration is zero. There is no doubt it about it. तो यहीं पर हम इसको जरूर लिखेंगे, acceleration in horizontal direction is zero. It is zero. तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हमारा जो एक्सेलरेशन है वो क्या होता है, जीरो होता है। तो दिस यू मस्ट अंडरस्टैंड। अपने आप को अनम्यूट रखिए। तो यू आर डन विद दिस। और दूसरी चीज एक और हमें मालूम होनी चाहिए, acceleration in vertical direction may be plus g, may be minus g। कुछ भी हो सकता है, प्लस जी भी हो सकता है एंड माइनस जी भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द केस ऑफ मोशन। इस बात का हमें बड़ा ध्यान रखना है। अगर बॉडी अपवर्ड जा रही है तो जी नेगेटिव होगा, अगर बॉडी डाउनवर्ड आ रही है, डाउनवर्ड देखिए बॉडी के दो वर्टिकल डिस्प्लेस, दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। हो सकता है कि वर्टिकल डिस्प्लेस बॉडी इज मूविंग इन अपवर्ड डायरेक्शन, सो जी एज यू नो दैट इट एक्ट्स इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो जी will reduce the vertical velocity. In that case vertical acceleration is taken as minus g। और मान लीजिए बॉडी इज moving downward, तो acceleration due to gravity, in the case when the body moves downward, acceleration due to gravity will increase its vertical velocity. So in that case it can be taken as plus g। There are different cases we will come across, और उसमें जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो हम बहुत सारी चीजों को सीखेंगे। तो अब जैसे एक जनरल टू डायमेंशनल मोशन का जो कैलकुलस ट्रीटमेंट है वो जरूर हम करना चाहेंगे, वो हम जरूर करना चाहेंगे और उस पर हम बात करेंगे अभी। विल टॉक अबाउट इट। तो आई एम श्योर दैट यू आर डन विद इट, यू आर डन विद इट। ओके, तो अब देखिए एक जनरल बात कर रहे हैं टू डायमेंशनल मोशन की। देखिए a body performs two dimensional motion, two dimensional motion, its equation of motion are
x equal to 4t square and y equal to t square plus 2t. Find horizontal velocity, horizontal and ध्यान दीजिएगा इस पे vertical velocity. Also find, एक जनरल केस कर रहे हैं, it is not a case of projectile motion, general case of two dimensional motion. Also find horizontal, प्रोजेक्टाइल के केस में तो हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन जीरो ही होता है, बट इट इज a जनरल केस ऑफ नॉट a projectile motion and vertical acceleration. अब जैसे देखिए, इसको बड़ा ध्यान से देखिएगा, ये आपके बहुत सारे डाउट्स को क्या कर देगा, क्लियर कर देगा. अब देखिए, Vx is called horizontal velocity, dx by dt. डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, d dt of 4t square. चिंता की बात नहीं है, कांस्टेंट को बाहर ले लीजिए, d dt of t square and d dt of t square is 2t, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ डिफरेंशिएशन ऑफ t to the power n and t to the power n minus 1. तो ये आपकी x वेलोसिटी आ गई, कितनी आ गई, 8t. अब दूसरे इक्वेशन को लेते हैं, y इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 2t, y वेलोसिटी निकाल लेते हैं. और यहाँ पर x और y क्या है, x हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है, और दूसरे वर्ड्स में तुम कह सकते हो कि x इज द डिस्प्लेसमेंट इन x डायरेक्शन, और y किस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है, y डायरेक्शन में. d dt ऑफ y, तो d dt ऑफ t स्क्वायर, दो टर्म है इसमें, d dt ऑफ 2t. इसको सीखिए, t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t, dt of dt, so y velocity is 2t plus 2. और वेलोसिटी, क्योंकि x और y 90 डिग्री पे होते हैं, तो अगर बॉडी की वेलोसिटी निकालना है तो हमें इसको ऐसे करना पड़ेगा, vx स्क्वायर दैट इज 64t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 2. स्क्वायर की बात नहीं कर रहे हैं. अब देखिए, ये आपका वेलोसिटी का फॉर्मूला बन गया. अब आप देखिए, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं. आपसे पूछा जाए इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉडी क्या है, तो भाई टी को क्या रख दो, 0 रख दो. अगर आपसे पूछा जाए टी इक्वल टू 1 सेकंड पे वेलोसिटी क्या है, तो टी को आप क्या रख दीजिए, 1 रख दीजिए. अगर आपसे पूछा जाए 2 सेकंड पे वेलोसिटी क्या है, 2 सेकंड पे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या है, तो यहाँ टी को 2 रख दीजिए. अगर ये पूछा जाए 2 सेकंड पे वर्टिकल वेलोसिटी कितनी है, वाई वेलोसिटी, तो यहाँ टी को क्या रख दीजिए, आप 2 रख दीजिए. और अगर आपसे पूछा जाए, देखिए लैंग्वेज को समझने की कोशिश करिए, अब फिर से बोल रहा हूँ, अगर आपसे पूछा जाए कि 2 सेकंड पर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या है, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के इक्वेशन में टी को 2 रखिए. अगर आपसे पूछा जाए 2 सेकंड पर वर्टिकल वेलोसिटी क्या है, तो ये रहा वर्टिकल वेलोसिटी का इक्वेशन, यहाँ पर आप टी को 2 रख दीजिए. फिर आपसे ऐसे पूछा जाए कि 2 सेकंड पर बॉडी की वेलोसिटी कितनी है, देखिए ये अलग लैंग्वेज हो गई. वेलोसिटी का मतलब होगा रूट ऑफ वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर. क्यों, क्योंकि x और y में एंगल कितना होता है, 90 डिग्री. सिंपल वेक्टर अप्रोच. यहाँ t को आप 2 सेकंड रख दीजिए. आपसे पूछा जाए इनिशियल, तो इनिशियल वेलोसिटी के केस में, इन द केस ऑफ इनिशियल वेलोसिटी, तो बच्चों हमें रखना पड़ेगा t इक्वल टू 0 सेकंड. सो प्लीज टेल मी, आर यू डन विद दिस. देखिए, यू हैव ड्रीम, विच इज वेरी गुड, बट हाउ टू accomplish it, पढ़ना पड़ेगा. Any coaching always helps you in solving your questions.
आप इसको आराम से नोट कर लीजिए और चेक करिए। एंड व्हाट आई एम फाइंडिंग कि आई एम वेटिंग फॉर यू, देयर इज नो इशू। सबसे पहली चीज है बच्चों, रेगुलर हो क्लास में। मैं जनरल बात बोल रहा हूँ, किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ। ये आपकी एक्स वेलोसिटी आ गई, horizontal velocity, और ये आ गई y velocity. It is not a case of projectile motion. It is a general case of two dimensional motion. तो ये अब हमने हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी भी निकाल ली और वर्टिकल वेलोसिटी भी निकाल ली। बहुत सिंपल डिफरेंशिएशन अप्रोच है। अब हमें निकालना है हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन और वर्टिकल एक्सेलरेशन, तो फिर हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। सो अगेन वी हैव टू डिफरेंशिएट। सो आर यू डन नाउ? सीखिए आप इसको। और इस फॉर्मूले को ध्यान रखिए, रूट ऑफ वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर को बिल्कुल ध्यान रखिए। ओके, अब देखिए, अब हमें मालूम है एक्स वेलोसिटी कितनी है, 80। तो एक्स एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं, डी डी टी ऑफ वी एक्स। 8 बाहर चला जाएगा नंबर होने के कारण, डी टी ऑफ डी टी 8 आ गया। अब आपसे पूछा जाए कि भाई y एक्सेलरेशन कितना है, तो y वेलोसिटी है 2t प्लस 2, तो y एक्सेलरेशन होगा डी डी टी ऑफ वी वाई। तो यहाँ हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, डी डी टी ऑफ 2t प्लस डी डी टी ऑफ 2। 2 एक नंबर है,